मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? बस ठीक है। Should we start? 9:07 हो गए। मंगलाचरण लेते हैं। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरे अंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पराग। In Moksha Marg Prakasha, we have understood so far characteristics of Arihant, Siddha, Acharya Upadhyaya and Sadhu. And today we are going to discuss purpose of adoration in Hindi, Pujyatva ka Karan. So purpose of adoration, it means there may be question in listeners or readers' mind why we must adore them. What Panditji has described here, Panch Parameshti. So why we should adore them? So Panditji is just giving some logic which are actually acceptable, and if we consider those logics in serious way, then we will know, or it will come to know that why we must adore all Parameshtis. So here we start purpose of adoration. And Kunjanji, have you shared the book? Saurabh I have shared it. So just to make sure, did we go over the characteristic of sadhu? Because there was one word I am seeing again. Do not ramble their view. I was just I'm just reading, but last time हमने भव्यता तक पढ़ रहे थे और फिर हमने उपाध्याय. Okay. I just remember, मुझे याद है कि शायद अपन ने साधु पढ़ लिया था, लेकिन ठीक है, भव्य अभव पे बात है। पढ़ लिया है तो ठीक है, मेरा ही मुझे नहीं, भव्य अभव का याद आ गया, हम यहीं से बात चालू की थी हमने, उपाध्याय में हमारा भव्य अभव का मैटर था। ओके, हम पढ़ से लेते हैं, साधु का स्वरूप भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम भव्य का ही स्वरूप ले रहे थे, बराबर है वो। तो उपाध्याय में जो कहा था ना कि एकाग्र जान अपने स्वरूप को ध्याते हैं और कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। तो अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं, ये वाली बात हमारी यहाँ आई थी, उससे हमने भव्य और अभव्य का निकाला था, और इसमें एक नीचे सेंटेंस भी लिखा था, ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को, तो भव्य की बात हमारी यहीं से निकली थी कि भव्य कौन होते हैं, कैसे होते हैं। Then last time it came to know that we all are bhavya. If we have lack of confidence, तो आचार्य शुभ चंद्राचार्य का मैंने आपको एक श्लोक ही बताया था, यत प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्ता पे ही सुता। So that was the श्लोक। तो भव्य अभव्य की मेरे ख्याल से चर्चा वहीं हो चुकी थी और सब लोग समझ भी चुके होंगे। अभी सम्य दर्शन के प्रकरण में थोड़ा सा और लेंगे हम, 5 लब्धियां लेंगे उसमें हम, और भी आज भी कोई प्रकरण निकलेगा, देन वी कैन कवर दैट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साधु, ecstatic monk. It is similar to Acharya Upadhyay. Roji, please read it. Okay, today we have some new one, Arpit Jain. Arpit Jain is new one today in class. Arpit joins our PTAT class, so I was to join
joining our class, at least for Samay sir and Okay. again. Arpit, please introduce हाँ जी yourself. हाँ जी, जय जैन सभी को। अर्पित जैन फ्रॉम मुंबई। Okay, Arpit, you are from Mumbai. Okay. या So, characteristics of sadhu. Rohanji, you are going to read. Yeah, Saurabh ji. Just lost the connection. कहाँ से पढ़ना है? From where should I read? Yeah, starting. Characteristics of sadhu from starting. Okay. Characteristic of sadhu. Further expecting the preceding about two types of rank holders, the rest are all those who hold monk's rank and are engrossed in attaining the nature of the soul and do not ramble their upyog, active consciousness, in other substances by treating them agreeable or disagreeable. Thus, they try to tranquilize the upyog and extremely observe religious penances, rituals, etc., as being instrumental cause and sometimes engage themselves in invocation, obscenence, and such other activities. Such are the true Jain monks who instantly make efforts for realization of their self soul. I bow to all such ascetic monks. Okay. So, in detail, we read about the common characteristics of Acharya, Upadhyaya, and Sadhu. That was in detail. Now, Upadhyaya and Upadhyaya Parmeshti and Sadhu Parmeshti, Panditji has just described it in very short. So, no problem. Panditji wants to tell here about the common characteristics of Sadhu. There's a one remarkable thing. What I usually personally I like. In Hindi, I'm just going to read. अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोग को साधते हैं. So here they do not ramble their upyog in other substance by treating them agreeable or disagreeable. Thus they try to tranquilize the upyog and externally observe religious penance, rituals, etc. So it is remarkable. अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोग को साधते हैं. So as you know, Acharya Upadhyaya, they are having a special title. Though Acharya Upadhyaya, they are also sadhu, but they are having a special title which is called Acharya and Upadhyaya. But in common, all are sadhu. But to just to create a discipline line of control in Sangh, and to appoint a teacher who is a more knowledgeable than other sadhus. So that's why these two special titles are given. Otherwise, all are sadhu. Even Acharya is also sadhu and Upadhyaya is also sadhu. So further accepting the preceding above two types of rank holders, the rest all are those who holds monk rank, are engrossed in attaining the nature of the soul and do not ramble their upyog. So जो इन अन्य दो पदवी के बिना जो धारक हैं, जो आत्म स्वभाव को साधते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, here in English, are engrossed in attaining the nature of the soul. So they are busy. What is the work of sadhu? Only self realization. Except self realization, there's no work. If sadhu is eating, it means he is eating because if body is healthy, then he can do swadhyaya, he can just engross himself in his soul. So if Acharya, if Upadhyaya is just following the path of 28 Mool Gun, the reason behind that is only self-engrossment. So the main purpose, the main motto is only self-engrossment. So if anyone asks you, what is the single, how you can narrate or describe sadhu in a single word? So we can narrate him as a person who completely devoted himself in self-engrossment. It is called sadhu.
So here we are reading Sadhu Swarup. आत्म स्वभाव को साधते हैं. Then next one, it is also very important. Are engrossed in attaining the nature of the soul and do not ramble their उपयोग. यहां वहां नहीं भटकाते. In other substances, वो अपना उपयोग यहां वहां नहीं भटकाते हैं. क्या नहीं भटकाते, मतलब वो अपने उपयोग को फंसाते नहीं है, अपने उपयोग को जबरन यहां वहां लगाते नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं. और क्या करते हैं वो, तो बाह्य में जो साधनभूत तपस्चरण आदि क्रियाएं हैं उनमें प्रवर्तित हैं. देयर आर टू थिंग्स. इंटरनली व्हाट ही डज, internally he does self attainment, and externally what he does, externally he just follow the rituals which is called 28 मूल गुण, and externally observe religious penance, rituals, etc. as being instrumental cause, and sometimes engage themselves in invocation, obeisance and such other activities. तो तपस्चरण आदि क्रियाओं में अपने आप को लगाते हैं. कदाचित वंदनादि भी करते हैं. वंदनादि मतलब भगवान की भक्ति, वंदना, तीर्थ वंदना, ये भी करते हैं वो. Such are the true Jain monks who incessantly make efforts for the realization of the self soul. I vow to all such ecstatic monks. These are the monks जो आत्म स्वभाव के साधक. Here is a word, आत्म स्वभाव के साधक. जो आत्म स्वभाव के साधक हैं उनको हमारा नमस्कार हो. So it is common स्वरूप of साधु. सेल्फ रियलाइजेशन इज मोटो. और बाहर में भी वो कैसे रहते हैं, बाहर में मुनिराज अपने 28 मूल गुणों का खंडित पालन करते हैं. इट मीन्स बाहर में भी वो उतने ही सही दिखते हैं जितने अंतरंग में है. बाहर में भी उनका आचरण उतना ही सही है जितने के अंतरंग में है. ऐसे स्वरूप के धारक साधु होते हैं जो वीतरागता को धारण किए हुए होते हैं, उनको हमारा नमस्कार हो. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साधु. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, else we will just jump to next topic, purpose of adoration. Saurabh, I think Arpit has asked one question in chat. Arpit, just go ahead and ask. You can raise hand and ask. हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने भी बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन, तो साधु कैन टीच अदर्स हाउ टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड हाउ टू engrossed in the same process. Of course, you know, here what we have read now. Thus they try to tranquilize the upyog and externally observe religious penance, rituals as being instrumental cause. So religious penance, it means स्वाध्याय. स्वाध्याय भी तप होता है एक. तो स्वाध्याय का मतलब होता है खुद भी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना, क्योंकि उसके भेद होते हैं ना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश. तो धर्मोपदेश इज अ पार्ट ऑफ पद है, तो वो दूसरों को बताते हैं. राइट, सो ही कैन डू. या ही कैन डू. और एक और एडवांस स्टेज में जाते हैं, जैसे मंदिर बनवाते हैं या पंच कल्याण करवाते हैं, सो दैट इज आल्सो मींस अलाउएबल. हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि 5 प्रकार के मुनिराज बताए गए हैं तत्वाद सूत्र में. पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक. हम अगर पुलाक और बकुश मुनिराजों की बात करते हैं तो ये 28 मूल गुणों में इनको पुलाक मुनिराज के उत्तर गुणों में दोष लगता है, और पुलाक बकुश जो मुनिराज होते हैं इनको शुभ भाव इस कैटेगरी के भी आ सकते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना कैसे हो. तो मंदिर में अच्छी से अच्छी डिजाइन बनना चाहिए ताकि लोग इस मंदिर को महान माने, भगवान की पूजा करें और आगे की पीढ़ियां भी अपने जैन धर्म की महिमा जाने. तो उन पुलाक बकुश मुनिराजों को भी ये विचार आ सकते हैं, क्योंकि कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहे, अदेवों को नहीं पूज रहे, वो कुदेवों को नहीं पूज रहे, कोई राग का उपदेश नहीं दे रहे. उनके शुभ भाव इस कैटेगरी के भी हो सकते हैं उपदेश के अलावा. तो पुलाक और बकुश मुनिराज ये भी पूज्य होते हैं. ओके. और
साथ ही साथ फिर ये भी टीच कर सकते हैं कि व्हाट शुड ए जैन पर्सन टू कंज्यूम और टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड. Of course, it is the part of Charnani Yoga. Okay. It is a part of Charnani. Though it is not duty to reform the society. It is not his duty. But उनको यहाँ लिखा ना externally Optionally, उनको yeah. शुभ भाव आता है. Externally observe religious parents, rituals. तो बाहर में उनको जो विचार आते हैं वो शुभ भाव आते हैं. तो शुभ भाव इस कैटेगरी के भी आ सकते हैं कि हम लोगों को द्रव्यानी योग का उपदेश दे दें, हम लोगों को चरणानी योग का उपदेश दे दें, अच्छे मंदिर बन जाएं ताकि जिन धर्म की प्रभाव ना हो, आगे लोग स्वाध्याय कर पाए, तो हो सकता है. इट्स अ पॉसिबल. राइट. मतलब मींस मेरा क्वेश्चन पूछने के मतलब ये थे क्योंकि क्या होता है कि जब दूसरों को पढ़ाने में जो टाइम डिवोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उतना टाइम कम होगा. नहीं, it is I have already told it is not his duty or mandatory. It is not mandate Right. for him that he will have to teach. You cannot fix his time. You cannot instruct him. Right. You cannot give him order. It is his self will. उनको जब लगेगा तो उपदेश देंगे, जब लगेगा तब शास्त्र लिखेंगे. आप अगर कोई मंदिर आदि की उनसे सलाह लेने जाते हैं, उनको लगता है देना चाहिए तो देंगे. It is not his duty. If we consider it is his duty, no problem है. कि आपको तो उपदेश देना ही पड़ेगा, आपको तो मंदिर बनवाना ही पड़ेगा, पड़ेगा नहीं. वो उपदेश देते हैं, स्वाध्याय का एक भेद है धर्मोपदेश, और उनको देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो कोई बात नहीं. Okay, so no any compulsion, right? Got it. So the main motto and purpose of his life is only self-realization. Saurabh ji, ये सब can we चीजें sorry to interrupt. So can Yeah, we, I mean, to Arpit's question, can we say that teaching others is also part of actually learning and also part of self-realization? When you're teaching others, that also helps you. Actually, you are engrossed in the same thing, that you are working on learning and teaching about something that is going to help you self-realize. So it's not something outside your goal or plan to achieve self-realization. When you're doing that, it actually helps you. It's like when you say teaching one time is like 100 times learning. So when you're doing that, you get to learn more, you understand more, the interaction, you're actually able to achieve your goal faster by teaching. No, we can say that Munraj has completed his PhD in self-realization. So there is no question that will support. But there are two upyog. As Todomalji is going to tell in next page, there are two upyog, Shuddh and Shubh. So it is his kamjori that Munraj cannot sustain for long time in Shuddh upyog. And it is natural if he just comes out from his self-realization, so what he will do? He cannot kill people, he cannot abuse, because it is called ashubh bhav. So यहाँ का अशुभ भाव की तो उनको सत्ता ही नहीं है. हमने पढ़ा था ना आचार्य में, अशुभ भाव की तो सत्ता नहीं है. But what the shubh bhav, what type of shubh bhav will be there? So shubh bhav will be there like teaching, like delivering a speech regarding Charnani Yoga, the Vyani Yoga. Sometime can teach of to just build a temple. But we cannot say that it supports him in self-realization. He has just completed his PhD in self-realization. अपन ऐसा बोल सकते हैं कि शुभ में रहना उनकी मजबूरी है. वो क्या करें, उनका उपयोग शुद्ध में रहता नहीं है उतने समय तक, तो शुभ में रहना मजबूरी है. तो सौरभ जी, then if that's the case कि उनकी कमजोरी है और उनको करने का the fifth part of Swadhyay is Dharmopadesh. That does not make sense. If it is Swadhyay, self अध्याय, खुद का अध्याय, उसके 5 स्टेप्स में और 5 अलग अलग प्रकार में धर्मोपदेश भी एक प्रकार बताया है. तो उन्होंने धर्मोपदेश में वही तो बताया ना जो उन्होंने रियलाइज किया है. उन्होंने धर्मोपदेश में किसी को कमाने की विधि नहीं बताई. उन्होंने धर्मोपदेश का मतलब कौन सा बताया? उन्होंने वही बताया कि आई हैव रियलाइज्ड माय सोल एंड यू कैन आल्सो रियलाइज दैट. इट इज धर्मोपदेश. So all the 5 steps of Swadhyay occur in Shubha Bhav and not in Shuddha Bhav? Shubh Bhav. All the 5 steps of Swadhyay, Vachana, Prashna, Pravartana, Anupreksha, Dharmopadesh. हाँ, बराबर. These are all in Shubha Bhav, not in Shuddha Bhav. Shubh Bhav. वो एक एग्जांपल भी आता है ना कि मुनिराज ऐसे ध्यान में ही होते हैं और जब ध्यान से बाहर आते हैं
तभी वो यू नो सिखाएंगे या बताएंगे कुछ. हाँ, when he just comes out from dhyan, then he will teach. So it is not compulsion. The main purpose and motto of his life is only self-realization. If he is delivering his speech, it means he is in now Shubh. So isn't self realization itself स्वाध्याय? स्वाध्याय का literal meaning एक ये भी होता है कि स्वाध्याय मतलब self realization. हम कह सकते हैं निश्चय से स्वाध्याय यही है. दो भेद होते हैं स्वाध्याय के. बाहर से वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश स्वाध्याय कहलाता है, और निश्चय नय से देखें तो अपने आत्मा में रमण करना स्वाध्याय कहलाता है. So Shubha and Shuddha both are स्वाध्याय. हाँ, बराबर, both are स्वाध्याय. Saurabh ji, one more question related to this only. So जो मुनि ज्यादा टाइम तक शुद्ध भाव में रह सकते हैं, वो फिर यही ट्राई करेंगे कि वो शुद्ध भाव में ही रहें. शुभ में मजबूरी हो तो ही आए, right? It is automatic process. Intensely, he doesn't do anything. Okay. It's automatic process. उनका जैसा उपयोग शुभ में जाता है, शुभ में चला जाता है, शुद्ध में जाता है, शुद्ध में चला जाता है. कोई शुभ में आने पे कोई खेद नहीं करते, वो खेद नहीं करते क्यों शुभ में आ गया. लेकिन अगर उनको प्रैक्टिस हो गई है शुद्ध में रहने की, ध्यान में रहने की, 12 आवर्स, 15 आवर्स, लॉन्ग आवर्स, सो फिर वो शुभ में नहीं आना चाहेंगे ना, क्योंकि अगर वो शुद्ध कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट वन. नहीं, ये ऐसा नहीं है. आप पिछली 2-3 क्लास पहले मैंने बताया था कि एग्जाम्पल दिया था. मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, फिर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. एक लड़की की सगाई हुई और लड़का ऐसा मिल गया कि जो लोग कहते हैं ना कि एक अलग से फैक्ट्री में बनाया क्या लड़का. दैट बॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स. तो कौन कौन से रेयर एलिमेंट्स हैं कि इतनी सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होना बहुत मुश्किल है. कि वो धर्म में भी बहुत पारंगत है. मतलब ही इज लाइक अ स्कॉलर एंड फिलोसफर टाइप ऑफ पर्सन. ही इज अ मिलीनियर, ही इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंसी, हैंडसमनेस एंड धर्म में बहुत पारंगत हो, दिखने में सुंदर होता हो, फैमिली अच्छी है, ये सब मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है. लेकिन फॉर्चुनेटली एक लड़की को मिल गया लड़का, और उसने समझ भी लिया कि इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन व्हाट आई हैव अचीव्ड. दो शी इज बिजी इन हर फादर बिजनेस और डेली रूटीन, क्योंकि 4 महीने बाद शादी है ना. उसके बाद भी उसे बीच बीच में ध्यान आ जाता है उसका. वो कोई सोच नहीं रही कि अब मुझे उसका ध्यान करना है. उसे ध्यान आ जाता है, अरे वाह यार, उसको तो ये भी आता है. मैं तो सोच रही थी मुझे बहुत आता है, लेकिन उसे तो बिजनेस करना ही बहुत अच्छे से आता है. फिर अपने बिजनेस में बिजी हो जाती है. फिर थोड़ा ध्यान आता है, खाना बनाती, अरे मैंने तो सुना उसे खाना भी अच्छा बनाना आता है. तो ऐसे शी इज नॉट थिंकिंग इंटेंसली, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है. ऐसे ही आचार्य उपदेश देते देते मुंडाज वो ध्यान में भी चले जाते हैं. खाना खाते खाते भी ध्यान में जा सकते हैं, वो आत्मा में जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा. जैसे वो पिता को पता नहीं चलता ना कि उनकी लड़की उस लड़के के बारे में सोच रही है, लेकिन माँ बहुत, स्त्रियां तो इनबॉर्न साइकोलॉजिस्ट होती है ना, तो उसकी माँ पहचान लेती है. तो बोलती है बेटा तुम्हें वहीं जाना है, जरा काम कर लो ध्यान से. तो जो ज्ञानी होते हैं वो पहचान जाते हैं कि वो मुनिराज आत्मा के ध्यान में कब गए, कब जा रहे हैं. और हमें लगता है कि सामान्य वो तो स्पीच दे रहे हैं, सामान्य वो तो खाना खा रहे हैं, लेकिन वो तो जाके वापस भी आ जाते हैं. Okay, got it from this example. तो वो कोई इंटेंस नहीं. और ऐसा नहीं है कि अगर आत्मा में नहीं जा पाए तो बहुत खेद करेंगे. वो माय ड्यूटी इज टू रियलाइज माई सेल्फ एंड इट हैज बीन लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट रियलाइज माई सेल्फ, व्हाट आई मस्ट डू. ये तो दुनिया बेकार है. राइट, मतलब उनको भी वही है कि सहजता से अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है ऐसा. जय जिनेंद्र सौरभ जी, मुझे क्वेश्चन था. तो वैसे भी मुनिराज अगर 48 मिनट जस्ट ज्यादा रहेंगे अगर शुद्धोपयोग में, तो उनको तो मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगा ना. हाँ, तो मैंने यही तो कहा, थोड़े समय शुद्ध में रहते हैं, फिर शुभ में आ जाते हैं, फिर शुद्ध में जाते हैं. तो शुद्ध में तो बहुत कम टाइम रहते हैं ना. हाँ, वही क्लैरिफाई करना था. तो उनका शुद्ध और शुभ भाव का साइकिल ऐसे चलता ही रहता है, राइट? साइकिल चलता है, लेकिन टाइम का ड्यूरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. हाँ, राइट. शुभ में ज्यादा रहते हैं वो. हाँ, ओके.
So this is characteristics of sadhu, and there may be question in your mind: is it possible to become sadhu, or why we are reading the characteristics of sadhu? Of course, it is possible because our soul is eternal. We are not only for this life. We will live forever. Our soul will remain forever. It may happen in this paryay, or it may happen in next paryay. So what we are reading is not for this paryay, not for this bhav, but also for next bhav, next to next bhav, because we all are willing to get salvation. So to complete that process of moksha, one will have to be sadhu. तो पंचम काल में तो मोक्ष जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी आप जाएंगे तो आपको साधु बनना ही पड़ेगा. It is the rule. So such are the true Jain monks who incessantly makes efforts for the realization of the self soul. I bow to all such ecstatic monks. Now next paragraph, purpose of adoration. Ami ji, please read it. Purpose of adoration. Ami Mehta. This is the nature of Arihantas, etc. It is full of passionlessness with perfect knowledge. By means of that only, the Arihantas, etc., are supreme and worthy of invocation and adoration. Because from Jiv Tattva point of view, all Jivas are alike. But because of attachment, etc., psychic maladies and feeble knowledge, Jivas become censurable, and due to lessening of attachment, etc., an increase of knowledge deserve adoration. So in Arihantas and Siddhas, due to complete absence of attachment, etc., and perfectness of knowledge, the manifestation of absolute passionlessness. So next page. Yeah. With perfect knowledge is possible, and in acharyas, upadhyas, and sadhus, that is, in all real Digambar Jain monks, due to partial lessening of attachment, etc., and specialty of knowledge, the manifestation of partial passionlessness with discriminative right knowledge is possible. Hence, Arihantas, etc., are known to be as supreme worthy of invocation and adoration. Okay, so purpose of adoration we are reading now, and it is very logical points what Panditji has given here, why we must adore them. Thus is the nature of Arihantas, etc., is full of passionlessness with perfect knowledge. इस प्रकार अरिहंत का स्वरूप है. Thus this is the characteristics of Arihant, etc. So वीतराग विज्ञानमय है. It is full of passionlessness with perfect knowledge. ये वीतराग विज्ञानमय है. हम इनको महान क्यों मानते हैं? Why they are great? Because ये लोग वीतराग विज्ञानमय हैं. इनके ज्ञान का कोई पार नहीं है. हम लोग जो मतलब कॉमनली जो नॉलेज सब लोग ले रहे हैं, इट इज नॉलेज फ्रॉम बुक, इट इज लिमिटेड नॉलेज. ये कहलाता क्षयुपसम ज्ञान. क्षयुपसम ज्ञान तो बहुत लिमिटेड है. हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि साइंस ने कार कैसे बना दी, साइंस ने ये कैसे बना दिया, वो कैसे बना दिया, लेकिन जो क्षयुपसम ज्ञान का काम है. अभी एक बार आप अवधि ज्ञान देख लोगे तो अवधि ज्ञान तो बहुत वंडरफुल है. मना पर्याय उनसे भी आगे है, और केवल ज्ञान की तो बात ही अलग है. तो ये जो लोग हुए हैं, ये पेशनलेसनेस, इट्स अ फुल ऑफ पेशनलेसनेस विद परफेक्ट नॉलेज. इनको जो नॉलेज है वो बहुत कमाल की है. हमें चूंकि बाहर में संसार की नॉलेज इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि हमने देखी नहीं है नॉलेज क्या होती है. लास्ट टाइम आई जस्ट गिव यू some sample of knowledge of our acharya in gravitation, just
rule of gravity, what Acharya Aklang Dev narrated in his Granth before 1200 years ago. But we think that Isaac Newton, who has invented, who has told, or who has exposed this rule, this gravitation force to the world. तो हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, लोग पढ़ते नहीं, इसलिए उसकी महिमा आती है लोगों को। तो यहाँ है कि जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, उनको हम क्यों पूजते हैं? So there is a word Vitrag Vigyanmay. You can remember this word. Translation will not clarify more, but they are Vitrag Vigyanmay. Vitrag Vigyanmay, it means full of patientlessness with perfect knowledge. By means of that only, the Arihant, etc., are supreme and worthy of invocation and adoration. So here, first and powerful logic what Todamal ji has given, उसी ही के द्वारा अरिहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं. There may be question when we just compare Arihant and others, why we must adore only Arihantas. So Pandit ji has given answer in very simple manner that they are full of patientlessness with perfect knowledge. By means of that only Arihant etc. are supreme and worthy of invocation and adoration. केवल वीतराग विज्ञानता के कारण ही वीतराग विज्ञानमय हैं, इसके ही द्वारा हम इनको स्तुति योग्य महान मानते हैं. So I think it is clear that why we adore them only, because we are the follower of Vitragta. So where we will find Vitragta, we will follow that. Here in 5 Parmeshtis, Arihant, from Arihant to Sadhu, we find Vitragta. That's why we adore them only. Vitrag विज्ञानमय हैं, इसलिए हम उनको पूजते हैं. Because from Jeev Tattva point of view, all jivas are alike, but because of attachment etc., psychic maladies and feeble knowledge, jivas become sensible and due to lessening of attachment etc. तो यहाँ कहा है कि जीव तत्व की अपेक्षा तो सब लोग समान है, all jiva are equal, लेकिन why we adore some or why we do not adore some? So here Todamal ji is giving very strong logic, because Vitrag Vigyanta is an element which can be found only in 5 Parmeshtis and not on others. So that is the reason we only adore them, because from Jiva point of view, all are same, all are alike. जीव तत्व की अपेक्षा तो सब समान है, परंतु रागादि विकारों व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता व ज्ञानता से ही की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we just can example of our country. All are the citizen of this country, but why is it so? Why is it there that a people who is a more respectable, and on other hand, other people is not so much of respectable? All are the citizen of India. One is a prime minister, so he is just getting his utmost respect from whole country, from whole world. And there is an ordinary person who is bad person, we can say, a criminal type of person. He is not getting respect. तो यहाँ कहा है, उनमें जो उस पद पे हैं उनमें विशेषता है, वो उस पद के योग्य हैं, गंभीर हैं, और वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, इसलिए सारा संसार और देश उनका सम्मान करता है. और ये जो है, ये क्रिमिनल है, देश को हानि पहुंचाता है, इसमें इतने गुण नहीं है, इसलिए हम नहीं. सिटीजन तो दोनों समान है. ऐसे ही जीव की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ कह रहे हैं समान है, सेम है जीव की अपेक्षा. But why we adore Arihant and do not adore others? So all jivas are equal, but main discrimination or
वी कैन से कि जो भेद है वो भेद क्यों है? क्योंकि जहाँ राग द्वेष है वो पूजनीय नहीं है, और जहाँ वीतरागता है या राग द्वेष की हीनता है तो वो स्तुति योग्य है, पूजनीय है। And increase of knowledge deserves adoration. So in Arihantas and Siddhas, due to complete absence of attachment, etc., and perfectness of knowledge, the manifestation of absolute passionlessness with perfect knowledge is possible. तो अरिहंत तो सिद्ध ये तो कंप्लीट मुक्त हो चुके हैं, मतलब इनको राग और द्वेष का अंश भी नहीं है, और परिपूर्ण वीतरागी भी हो चुके हैं. They are completely free from attachment and aversion. They are having nothing. So they are, we can say that Arihant and Siddha, they are complete Vitaragi. But about Acharya and Acharya Upadhyaya and Sadhu, that in all real Digambar, Jain monks, due to partial lessening of attachment, etc., and especially of knowledge and manifestation of partial passionlessness, with discriminative right knowledge is possible. तो उनको अरिहंतो और सिद्ध के बाद आचार्य उपाध्याय साधु हैं, तो उनको भी वीतराग विज्ञान संभव है, लेकिन एक देश, क्योंकि उनका राग एक देश गया है, उनको ज्ञान भी, उनको अभी केवल ज्ञान नहीं है, उनको क्षयुपसम ज्ञान है, वो भी एक देश है. सो एक देश उनको वीतरागता है. वाई टोडरमल जी स्पेशली just raise this point? Acharya Upadhyaya and Sadhu also are adorable because they are Vitragi, though they are not a complete Vitragi. Complete Vitragi is only one, only two, Arihant and Siddha. So they are completely Vitragi and completely free from attachment and aversion. That's why we can adore them. But Acharya Upadhyaya Sadhu are also adorable. Why? Because they are having partially Vitragata. It is called Ek Desh Vitragata. They are having Ek Desh Vitragata. And speciality of knowledge and manifestation of partial passionless with discriminative right knowledge is possible. Hence, Arihant etc. are to be known as supreme, worthy of invocation and adoration. इसलिए उन अरिहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना. It is best logic what I have just read ever. This question just also came in my mind because we are living in this world where we usually hear this sentence, all God are same. You must not discriminate that this God is good, this God is bad. Of course, Jain Darshan also does not say this, that this God is bad, this God is good. But Jainism says only a person who is having Vitragata and free from, means free from attachment and aversion in complete way, those are only adorable. So Arihant and Siddha are completely achieved this Vitragi state, and Acharya Upadhyaya and Sadhu, they are following partially Vitragata. That's why we adore them. So when I was in 10th class, so this question was also in my mind. Why is it so that Arihant and Siddha, they are adorable, and others? Because that time I used to go to other temple also. So this question, because my most of the friends were not Jain, they were a Jain, and usually I band with them to attend temple in 10th class, and it is the matter of, I think, more than 25 years. So when I went to Smarak, or when I studied, then the question solved when I was reading Moksha Prakasak, this chapter. So Todamalji, in a very smart and logical way, he presented his fact that due to Vitragata, we adore only them. Then I realized this is the perfect answer. This is the real logic why we must adore them, because they are Vitragi. Arihant and Siddha, they are complete Vitragi. Acharya, Upadhyaya and Sadhu, they are partial Vitragi. So we must also remember forever
that हम वीतरागता को पूजते हैं, हमारे लिए मात्र वीतरागता ही पूज्य है. जहां wherever we will find वीतरागता, we will adore them. जहां हमें वीतरागता मिलेगी वहां हम उनको देव और गुरु का हमको नमस्कार करेंगे, और जहां नहीं मिलेगी वो नहीं है. नाउ रिमार्केबल पॉइंट इज दैट हमें द्वेष नहीं रखना है किसी से, मतलब इट इज प्रोहिबिटेड. वीतरागता ऑफ कोर्स अच्छी है, लेकिन अगर आप अवीतरागियों से द्वेष रखेंगे तो इट इज ऑल्सो, ये कहलाता अशुभ भाव. वीतरागियों से तो उनको नमस्कार करना, राग करना है, लेकिन अवीतरागियों से द्वेष करने की मना है. तो क्या करें? what we will have to, there is a word, उदासीन भाव से रहें. उदासीन भाव से रहें मतलब कि जैसे अपन कहते हैं ना कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है. मतलब नहीं, इट मीन्स वी डोंट थिंक अबाउट देम, नॉर गुड नॉर बैड. इसे बोलते हैं indifferentness, वो कह सकते हैं ना अपन, उदासीनता, indifferentness. So it is very important point. What logic? I hope all of you have understood this logic. What Pandit ji is giving. Why we must adore only Arihant and Arihant from Arihant to Sadhu. Okay, Kunjan ji, are you asking something? So the one question I had, can we get into, again, not, I wouldn't say argument, but self-defense for just saying again, to prove the Vitragta. Again, I'm just saying sometimes it becomes hard to be on the other side. You want to ask what logic? It is logical that we must adore only Vitragta, and it is hard to make others understand. I wouldn't say others understand, but at least to self-defend. At least sometimes people would question us. Okay. And anyone can give answer of this question. Otherwise, else I will give. Of course, I will give. But if anyone is there, yeah. Can I try, Saurabh? Yeah, please, you can try. So, Saurabh, what I feel is like there are like 4 kind of bhavna: Madhyasth bhav, Karunya bhav, Pramod bhav, and Maitri bhav. So it's not easy to explain everyone at all the times. And there are all type of people around this world. As you were telling some time back, like there are terrorists around this world. I mean, we see a lot of terrorists around us, then we see a lot of good people around us, then we see sadhu, upadhyay, everyone across our world, right? So how should we deal ourselves into those situations? So I was just reading this 4 bhavna, and what I understood is like we should always keep Maitri bhav with everyone who is around us. But sometimes the situation arose that you see like terrorists doing some lot of antisocial activities, and then those scenarios you should always keep one kind of bhav, which is like madhyastha bhav. You should always leave those. Okay, just keep your gyata drashti, and that's all. So again, as Prerit asked, like it's sometimes difficult to defend ourselves that this is right. In those scenarios, what I feel now with more of the swadhyay, what we do is like just भव्य दव्यता का विचार करो. अगर जिसको जानना होगा वो जान ही जाएगा, और जिसको नहीं जानना है तो आप अपना कार्य करते, आप तो अपना कार्य कर ही रहे हो. So just continue your path. Okay, Rohan ji has given his answer. Anyone would like to give answer from his side? One more thing, Arpit, just a second, is here sometimes you can't be neutral. It's not a madhyastha because you're also going to side somebody. Okay. Kunjan ji, question is very practical, that's why we are discussing. It's a very practical question. That in a group we are reading, we must adore only Vitragta. It's a logical, and we understand Vitragta is adorable. But in society, in front of common people, how we can face them, how we can give answer. Of course, it's a practical question. So we are here to solve this puzzle. Yeah, Arpit ji, are you saying something? No. Sorry, go ahead. नहीं, बस कुंजन जी का क्वेश्चन था लगभग सेम लाइन पे ही है. सो ऑलरेडी ओके, जी बताइए आप.
हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि आप दूसरों की बिलीफ को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ अपनी बिलीफ रखते हो, आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और लोगों को ऐसे 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 क्वेश्चन आता है जो जब लोग देखते हैं कि हम दूसरों को नमस्कार नहीं करते, ऐसे जो वितरागी नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट कैसे नहीं करते, रिस्पेक्ट तो है ही, क्योंकि सबको, हम तो ये मानते हैं ना कि सबको अपनी अपनी बिलीफ रखने का अधिकार है। हम कहाँ किसी को फोर्स कर रहे हैं, या हम तो ये कह रहे हैं कि सब स्वतंत्र है, हम किसी को चेंज भी नहीं कर सकते अगर वो नहीं चाहे। तो हम तो हर एक का राइट है, हर एक का जो राइट है बिलीफ रखने का, उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डिसरिस्पेक्ट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि हम हर एक की फ्रीडम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये आंसर दे सकते हैं। और दूसरा आंसर ये है कि रादर देन टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मत बात करो, उनके भगवान का नाम लेकर बात मत करो, या फिर अपने भगवान का नाम लेकर की बात मत करो। सिर्फ बात ये करो कि आप कैसी बिहेवियर चाहते हो, पर्सन में से कैसी बिहेवियर चाहते हो। जो पर्सन आप जिसकी पूजा करना चाहते हो, जिसको आप अडोर करना चाहते हो, कैसी बिहेवियर चाहोगे? आप उनसे क्रोध चाहोगे, आप उससे क्रिमिनल जैसी बिहेवियर चाहोगे, या अच्छी बिहेवियर चाहोगे? तो खुद ही उनको आंसर देने दो कि किसने क्या काम किया था। क्योंकि जब वो लोग बात करेंगे ना कि हाँ इन्होंने ये सब काम किया था, तो उनके लिए ही डिफेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ जब ये क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने ये प्रश्न किया था, चलो नाम छोड़ो, आप कैसी बिहेवियर चाहोगे? और जब बात निकली कि अच्छा किसी ने अपने बेटे को ही मार दिया था, किसी भगवान ने अपने बेटे को ही मार दिया था, तो फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ आंसर नहीं रहता है कि अच्छा ऐसी बिहेवियर तो हम आज सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चे को मार देने की। तो फिर हम कैसे भगवान से ऐसी बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये Okay. आंसर दे सकते हैं। नाम मत लो, कैरेक्टरिस्टिक। गुड, बढ़िया। प्रेरित जी ने भी एक आंसर दिया। एनीवन? Means, yeah, one thing means here we can discuss about the philosophy of the religion instead of that particular religion. Like नाम नहीं लेना है जैनिज्म का, लेकिन जैनिज्म के philosophy we can use. ठीक है। ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? बताइए। प्रीतेश जी, आप बताना चाहेंगे? ओके, अब मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ, है ना? आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये आप लोगों को लाइफ टाइम काम में भी आएगा, और आप लोगों ने कई जगह फेस भी किया होगा, तो उस समय भी क्या करना चाहिए वो आंसर। तो देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस से ही समझाता हूँ आप लोगों को। बीइंग ए वेल्थ मैनेजर, सब लोग जानते हैं मेरा काम क्या है। तो कहीं भी पार्टी में, कहीं भी शादी में, कहीं मिलते हैं, ऑलवेज लोग हमसे पूछते, मेरे से पूछते, सौरभ जी कुछ बताओ क्या ले लें। तो मैं नहीं बताता, बिकॉज मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं धार्मिक शिक्षा फ्री में देता हूँ, लेकिन मैं किसी को वेल्थ मैनेज फ्री में नहीं करता। तो आपको अगर मेरे से पूछना है व्हाट यू हैव टू बाय, you will have to you will have to open an account with me, then I will tell you what you have to buy and what the tool will be beneficial for you. एक बात। दूसरी बात, मैं किसको क्या बताना चाहिए वो मुझे पता होता है कि मुझे किसको क्या बताना। सपोज दैट कोई पर्सन है, मुझे उसकी कैपेसिटी पता है कि वो तो 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मिनिमम साइज 3 से 5 करोड़ है, लेकिन मैं सबको नहीं बताता। मुझे पता है इस व्यक्ति की कैपेसिटी है, ये इन्वेस्ट कर सकता है, ये इस प्रोडक्ट को समझता है, और इसे पता है कि ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कितना बेनिफिशियल होगा, तो हम उसको ही बताते हैं। मतलब हम वो प्रोडक्ट अगर 3-5 करोड़ का कोई प्रोडक्ट है और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हम सबको नहीं बताते, हम उसको ही बताते हैं जिसको बताना चाहिए, उसकी योग्यता देखकर। जी, ऐसे ही है। अब मैं इस बात को अपनी क्वेश्चन से रिलेट करता हूं। मैं, कोई जरूरी थोड़ी है हम सबके क्वेश्चंस के आंसर दें, क्योंकि संसार के सबके क्वेश्चन तो बड़े नोविस होते हैं, कभी कभी मैलिशियस भी होते हैं। क्या करें, हम सबके आंसर देते फिरें? मतलब मेरे से, मैं तो जहां भी जाऊं सब लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सौरभ जी बताइए व्हाट आई हैव टू बाय, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। मैं आंसर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोलता हूँ भाई
my research on, I have spent my time, I am spending my time and money. मैं रिसर्च खरीदता हूँ, रिसर्च करने के लिए पैसे देता हूँ, खुद बहुत टाइम लगाता हूँ। मैं क्यों बताऊं? ऐसे ही मैंने वीतरागता की रिसर्च की है। मैं, कोई सामान्य व्यक्ति मेरे से आके पूछे कि भाई ये तो तुम्हें एक पूर्वाग्रह है, तुम दूसरों को बुरा क्यों बोलते हो, अपने को अच्छा बोलते हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको आंसर देना चाहिए, है ना? मुझे कोई जीतना नहीं है, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी चल रहा है कि मैं उनको हरा दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। किसको मैं आंसर देने के योग्य समझता हूं, मैं उसको दूंगा। मुझे रियली लगता है, व्हेन आई फील दैट दिस इज प्रॉपर पर्सन टू whom आई कैन एक्सप्लेन, हमें उनको करना भी चाहिए। हमें लगता है इसको समझने की बुद्धि भी है और इसे समझाऊंगा तो ये समझेगा, उनको समझाना चाहिए। बिकॉज आप लोगों से ज्यादा तो मैं ये चीजें फेस करता हूँ यूजुअली। जब मतलब मुझसे तो लोग बोलते ही हैं आप बहुत कट्टर हैं, सौरभ जी कैसे चलता है आपका जीवन, कैसे कमाएंगे आप, कैसे लाइफ में कुछ कर पाएंगे आप तो ये फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं, दिन भर धर्म में डूबे रहते हैं, कैसे क्या करेंगे? मैं आंसर नहीं देता उनको, मैं आंसर नहीं देता हूँ कुछ भी उनको। अच्छा, इसके अलावा जैसे और लोग बोलते हैं कि अरे ये तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये तो बहुत बेकार है, ये तो इससे तो कभी कोई कमा ही नहीं सकता, लुटते हैं। मुझे पता है कि जो जो नॉलेजेबल लोग नहीं है वो लुटते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने आज अमीर हैं, 100 में से 100 अमीर किसी फाइनेंशियल मार्केट से हैं। भले वो आप लोग गूगल है तो क्या है, उसके शेयर जिसने खरीद रखे हैं वो पैसे वाला है। मैं उनको भी आंसर नहीं देता हूँ। जो बोलते हैं ना इट इज बैड टूल फॉर आवर फाइनेंशियल हेल्थ, मैं उनको आंसर नहीं देता। मैं क्योंकि मुझे पता है दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे डू नॉट नो अबाउट दिस मार्केट, दैट्स व्हाई ये सुनी सुनाई बातें मेरे से कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आप तो बहुत कट्टर हैं, सारे देव समान हैं, आप ऐसा मानो, तो मैं उसको आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अ पर्सन हु इज टॉकिंग लाइक दिस ही इज नॉट नॉलेजेबल, he doesn't have study, that's why he is talking like this। तो ये इतने सालों में मैंने जो फील किया, फेस किया, और उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जिनमानी के हिसाब से बनाई, क्योंकि हमें राह चलते लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनकी बातों का आंसर नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति को योग्य जाने हम उसको ही वीतरागता की बात बताएंगे। तो कुंजन जी, आपका क्वेश्चन अच्छा आया, इवन सब लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोगों को आंसर दें या ना दें। हर जगह मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, आई विल नॉट बी देयर एट एवरी प्लेसेस, बट माय आंसर विल, यू विल हैव माय आंसर, एंड यू कैन फॉलो दैट, कि किसको मुझे बताना, किसको नहीं बताना। आपको ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा, और ये कोई जरूरी नहीं है मैं हर जगह बोलूं या हर जगह मैं आंसर दूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल टू गिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगर कोई मुझ पे आरोप लगाए कि आप तो केवल अपने अपने भगवान की तारीफ करते हैं और आप तो बड़े फैनेटिक हैं, कट्टरवादी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कोई जरूरी नहीं है मुझे आंसर देना पड़े उसका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बताइए आप लोग। नहीं, ठीक है सौरभ जी, बहुत ही अच्छा आंसर। सबके व्यू पॉइंट बराबर है सौरभ जी। जैसे प्रेरित ने कहा कि हम अपने एक स्पेसिफिक भगवान को लेकर नहीं, पर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके हिसाब से हम पूछते हैं अरियंतों को, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हम वीतरागता का प्रोडक्ट सबको कैसे बता सकते हैं। हमें लगता है भले ये वीतरागता नहीं जानता, लेकिन हम इसको समझा सकते हैं। ये समझ सकता है तो बता दीजिए ना आप। लेकिन वीतरागता ऐसा हैवी प्रोडक्ट है, सब लोग बाय कर ही नहीं सकते, तो हम बताएं क्यों सबको? मैंने तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मैं सब लोगों को बताते हुए नहीं घूमता हूँ कि मैं रात को नहीं खाता, मैं तो मेरा तो 3 घंटे का स्वाध्याय होता ही होता है। सब लोग बोलते हैं सौरभ जी आप तो मंदिर भी नहीं जा पाते हो, देखो इतने बिजी रहते हो आप तो, सुबह से शाम तक ऑफिस में, इसमें उसमें। मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ हाँ बताइए आप क्या करना है। तो ऐसे ही हम किस व्यक्ति को क्या आंसर देना है, उसको योग्य जान वैसा आंसर हम दे सकते हैं या देना चाहिए। सब लोग हैं एग्री इस बात से? जी सर। बस एक यही था सौरभ जी कि यहाँ फिर आउट ऑफ द सोसाइटी से थोड़ा ऐसा नहीं रहता है डर कि लोग प्राउडी समझेंगे अपने को, ऐसा कुछ? अब लोग तो कुछ तो समझेंगे अर्पित जी उनका राइट। काम समझना है। वो तो बिकॉज ऐसा वी है आर कि वो एक लिविंग विद द सोसाइटी एंड नहीं ठीक है ना। मैं देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, बी नॉर्मल रहे हम लोग। हम मेरा एक
मतलब मैं सारी क्लासेस में प्रिंसिपल बताता हूँ, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ मैं, हम बाहर से साधारण दिखें, अंदर से असाधारण रहें, ज्ञान में भी और धन में भी। धन में भी बाहर से हम साधारण रहें, अंदर से असाधारण रहें, ज्ञान में भी बाहर से हम साधारण दिखें, अंदर से असाधारण रहें, कोई आपको छेड़ेगा ही नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या होती है This कि is हम बाहर से असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग हमें मतलब पकड़ लेते हैं। this ठीक is है the अर्पित जी? right approach, right? Yeah, perfect. Got it. और वैसे भी देखो, मुझे कोई बहुत जिसकी मिथ्यात्व की मान्यता है, कर्तृत्व की मान्यता है, कोई मांस भक्षी है, मुझे वैसे भी उनके साथ रहना नहीं है। मुझे उनकी सोसाइटी का मुझे जरूरत भी नहीं है उनके साथ की। मुझे मतलब मैं तो बहुत क्लियरली सबको बोलता हूँ कि भाई मुझे शराबियों की, मांसाहारियों की और मिथ्यात्व के अहंकार से ग्रसित बहुत भयानक क्रोधियों की मुझे तो आवश्यकता नहीं है। मतलब मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं पॉइजन तो नहीं खा सकता ना। ऐसा ही है, मुझे अच्छी संगति वाले नहीं मिलेंगे तो मैं उन लोगों को तो अपनी संगति में नहीं लूंगा। अर्पित जी, इज इट क्लियर? Right. Perfect. एकदम clear. तो बढ़िया। कुंजन जी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन और उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ वो मैंने आंसर दिया, कुछ प्रेरित जी ने बताया, रोहन जी ने बताया, और कोई बताना चाहे तो देन फील फ्री टू गिव योर आंसर। So today we have read Purpose of Adoration, first paragraph, and what remarkable thing we have just discussed here about Vitrakta. Why all these are adorable? Because they are having Vitrakta, and Vitrakta is a subject matter of feeling. It means Vitrakta, feeling of Vitrakta. It means मेरे आराध्य देव ऐसे हैं जिनको ना कोई राग है ना द्वेष है, वो मेरे से उत्कृष्ट हैं। अभी आई थी ना बात कि वो उनने अपने बेटे को मार डाला, उनने अपने उसको मार डाला, एंड दे एंगेज इन दिस सेंसरी लाइफ। कैसे आदर्श हो सकते हैं मेरे वो, जो मैं काम नहीं करता, द थिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन इन आवर सोसाइटी। हाउ आई कैन एक्सेप्ट दोज पर्सन एज गॉड? Those who has committed against the law, committed many tasks against the law, against the society. I cannot consider them as a lord, as a god. So why Arihant and Siddharth, they are adorable? It is clear for us. और हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम वीतरागता को पूजने वाले हैं। और वीतरागता क्या होती है आपको पता ही है, राग द्वेष रहितपना। ये वीतरागी बाहर से संयमी भी होते हैं, याद रखिए ना। कुछ लोग आपसे केवल वीतरागता की बात करेंगे, वीतरागी शब्द की बात करेंगे, लेकिन पूजने की बात हो रही है तो हम पूज केवल इनको ही सकते हैं। पांचों में ही वीतरागता होती है, क्योंकि अंतरंग से तो संयमी है ही है, बहिरंग से भी संयमी है, इसलिए इनके पूज्यत्व का कारण है। और आगे का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो हम जिनवाणी से लेते हैं। जिनवाणी से लें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट टाइम से वीडियो चालू करने का रखें अपन लोग क्या? हाँ सौरभ जी, मैं भी वही सोच रहा था। गौरव जी जब आए वो भी बोल रहे थे we should try at least, it will help. नहीं आप लोग रखिए ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो चालू रख दीजिए। अगर बीच में जैसे आप लोग कहीं जाना हो तो चले जाइए। मैं आप लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टोकूंगा नहीं मैं, लेकिन उससे फील आएगा, एक हमें वीडियो से फील आएगा, मुझे भी फील आएगा, आप लोग को फील आएगा। सौरभ जी, only thing I want to say is we should do it. सिर्फ किसका अगेन कभी कभी वो लैग होगा या ऐसा होगा तो अपन तभी डिसाइड कर लेंगे या बंद कर दे, उनको प्रॉब्लम होगा अभी नेटवर्क का ऐसा, बट अदरवाइज वी शुड। हाँ, करना चाहिए वो। तो उससे क्या एक सामने सामने एक फील आएगा हमें क्वेश्चन पूछने का, आंसर देने का। नेक्स्ट टाइम हम लोग वीडियो चालू करेंगे, ठीक है? सब लोग एग्री हैं? यू कैन रेज योर हैंड।
I feel के मैं बन रखूं चलेगा, right? Like not necessary everybody has to. नहीं नहीं नहीं, किसी को कंपलसरी नहीं है, इट इज Okay. जस्ट ऑप्शनल है Mhm. कि Okay. अगर आप रखेंगे ना देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल. And we understand that sometimes we get into kids or things ourselves that we get busy. But हाँ हाँ, इसलिए मैंने बोला कि जो बंद रखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे बंद ही रखना चाहिए तो रख सकते हैं. इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट Okay. मैंडेटरी. Thank you. ठीक है, चलिए जिनवाणी से लेते हैं हम लोग. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार. आप लोग याद भी कर लीजिए, सब लोग अगली बार से मंगलाचरण सब लोग एक साथ करेंगे. जिनवाणी स्तुति सब लोग एक साथ बोलेंगे. ग्रुप पे डाल भी चुके हैं कुंजन जी जिनवाणी स्तुति और मंगलाचरण. ठीक है, सब लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे, साथ में जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. नेक्स्ट टाइम वी आर मीटिंग. और जय जो हिंद लोग सर. नहीं आ रहे हैं थैंक यू. उनको आप लोग मोटिवेट कीजिए. नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र. जय हिंद. थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.